Rating करोगे? वाइट था वो White का था? वाइट था Red का था? सेटर अब मैं कोई कर कुछ नहीं रजिस्टर है हेलो ना कौन है साउंड छोटा ही लगी हाँ डबल क्लिक कर दे 100% लिखे हुए नया फाइल को जान ओके हेलो नहीं पता हेलो Good evening, sir. good evening are you able to hear me Good evening, sir. okay Yes, sir. I think it's fine Good evening, sir. good evening Good evening, sir. good evening इंटरनेट Mhm. Okay, so today what we do, we will start with the semiconductor electronics. Okay, Okay, sir. यार देखिए लिखो Hmm. अपन एटी देखिए लिखो नहीं कांटेक्ट Hmm. ठीक यही हाँ देखिए कि सेट लिखो हाँ आर्टिकल यदि हाथ रखो किछु नहीं हाथ रखी कि पेन रे लेखला लेखे एट देखि लखन दो कौन है अपन पेन दो फिर এটা ইয়ে नहीं अपन यूज करना ना थोड़े ले हाँ लखन दे कर दो क्लियर कर दे बस अब क्लिक कर दो 100% लिखे हां हला अपन और बड़ा लिखे नहीं बोल sorry so so what we are going to cover, there are basically 3 or 4 topics are there in semiconductor. First one is basic materials. Materials possessing electrical property. So what we are going to cover in this one is basically metals, insulators, and semiconductors. Once we study the properties of these, we are going to specifically for the semiconductors. So in semiconductors, what we do,
we will be looking into the properties and types of materials. Second one is devices, semiconductor devices. And characteristics. And once we look into the characteristics and these, we will look into the some of the applications. Sir, Guru sir phone କରୁଛନ୍ତି। ଦେବି sir, Guru sir phone କରୁଛନ୍ତି। Once we look into the applications, we will be looking into the part of semiconductors application, that is a digital logic. In the digital logic, we will be looking into gates and basically number system and applications of gates. So this is whole semiconductor electronics consists of. So first what we will do, we will be starting with the material. So material can be found in three forms. So materials are of three types. One, solids. So what is basically solids are? Basically they have a definite shape and structure. Shape and structure and volume, which cannot be changed with respect to time unless until we change the some of the properties of the solids. Like if we heat the material, it may change to a liquid state. Other than that, it will not change. Second one is a liquid form. So liquid don't have any shape. So this don't have any shape, but has finite volume. And final one is a gaseous state. It does not have, it don't have any shape or volume. So how these three are different? Now, if we take the liquid in a glass, the amount of liquid is the same, but it takes the form of a glass. If we transfer that one to another cup, so the volume will remain constant, but it will take the shape of the cup. So that is what, it does not have any shape. So liquid always take the shape of the container. And if you come to the case of gas, what will happen? It does not have a shape or a volume. So if we take a 1 liter of gas and we put in a 2 liters of volume in a glass container, it takes the it becomes the 2 liters volume. So that is what makes the difference of gas. Okay. Now we will be concentrating exactly on solids and basically electrical properties of solids, not liquids or gas. So that is what all about the semiconductor electronics. So to understand the electrical property,
what we will be looking into. So we will be looking into the structures of the solids. Structures of solids. So solids are basically available in two forms. One is crystalline structures, another one is amorphous structures. Now, what exactly this crystalline structure? Now, if we look into its atomic structure, so what they do, they actually have the repetitive structure in the 3D space. Repetitive pattern in three-dimensional space. So something like this. So if we take any something, so this is a one structure, one atom. So it is available in these forms, for example. So this is what is some kind of a structure. So it is one dimension X, second dimension Y, and this will be the third dimension Z. So you will have the similar structure in X, similar structure in Y, and similar structure in Z. So that is what happens in a three-dimensional space. Okay. Now, if we look into the amorphous, next one is the amorphous structure. So for some examples are, it's a diamond, then you have a sodium, etc. Other materials are which are available in the crystalline structure. But when you come for the amorphous structures, okay, so before that, what we do, we will look into the some of the properties. So these will have the properties. So what are the properties? Now, it has a sharp melting point. And second comes is these are anisotropic. Anisotropic. What does it mean? Implies? Means each direction has different property. So X might have a different property, Y might have a different property. Similarly, Z axis might have the different property. So that is called the anisotropic. So these two are the properties of a crystalline materials, whatever may be the material. Okay. Now, if you come for the amorphous, so now in amorphous, what we have, these atoms are arranged in a random fashion. Atoms are arranged in a
random or zigzag fashion. Means no specific structure is available. No specific pattern is available. So that is what the amorphous are. So amorphous is just like a your powder, which don't have any structure, and crystalline is just like a salt, or you will have these what you say sugar cane cubes. So these are the crystalline structures. Now, if you come for the properties of amorphous material, there is no sharp melting point, no sharp melting point, and they are isotropic in nature. In nature. So what is the anisotropic? Anisotropic is each direction has the different property. Isotropic means each direction has the same property. Each direction has same property. So that is what makes the difference of crystalline and amorphous. Now, what we conclude here, again, we just look into what we have seen here. First, we started with the what is the material. So material is a matter which has the any one of the three forms. Forms can be a solids, liquids, or gases. So what is the solid? Solid means it has a definite shape, structure, and a volume. But when we come for the liquids, it does not have any shape, but has the finite volume. And liquids always takes the shape of the container. And the final one is a gas. Gas don't have any shape or a volume. So gas always take the shape and the volume of the container. So that is what the three different types of forms or states of a matter. Okay. Now, once we have seen the different, actually there is other one is there that is called the plasma, and plasma is basically a special characteristics under certain conditions. सर ओडिया टिक बुझे दियंतु सर ओडिया रे की हां सर ठीक अछि ओडिया रे कहि देबे हला सर फास्ट रो टिके ओडिया रे हां फास्ट रो आथरे कहूची हला हां सर हां देखो तुमको कंटेंट कोन कोन अछि जाना पड़ला तो कंटेंट रे किछि डाउट अछि एबे कोन कोन पढवा हला हां एबे देखिया मटेरियल माने कोन आको एक्चुअली मैटर बोली कहंते मैटर माने कोन एक्चुअली एवरीथिंग माने जहा भी जहार अस्तित्व अछि एक्जिस्टेंस इज देयर जहार अस्तित्व अछि तक हमें कहबा मैटर मैटर कोन कोन फॉर्म रे मिले तीन प्रकार फॉर्म रे मिले एदर सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैस हला सॉलिड्स माने कोन जार की गोटा पर्टिकुलर शेप थाए और वॉल्यूम थाए हला एबे देखो तुम जदी गोटे चिन्नी रो गोटे दाना नेलो तार गोटे पर्टिकुलर शेप थाए हला तुम ताको चेंज करि परिवानी तुम किछि पैरामीटर्स चेंज कले ही तोर चेंज हबो ए पैरामीटर कोन तुम टेम्परेचर दबो टेम्परेचर जदी बढ़ेबो तीनटा जो सॉलिड थिला सेटा कोन हबो लिक्विड हबो तरल पदार्थ हे जिवो हला सेटा कठिन थिला एबे तरल हे जिवो किंतु टेम्परेचर जदी और तमरो तापमान जदी कांस्टेंट रहिला तो सेटा सही फॉर्म रे रहिबो चिनी दाना हे कि ही रहिबो हला ताको कहउचंती शेप एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट
सेमिति तरल पदार्थ को जदि आसीबा तरल पदार्थ कौन तार वॉल्यूम सेम थाए एबे देखो गोटे लिटर तमे पानी नब ताको गोटे ग्लास रे पकेबो माने सेटा कौन ग्लास शेप नब किंतु लिटर ही रहइबो जदि ताको तमे गोटे कप रे पकेबो गोटे लिटर ही रहइबो किंतु सेटा कप शेप नब हेले सेथबे हम कोन कहछन तरल पदार्थ जाको तार शेप न थाए जेथिरे पकेबा तार सही शेप आसी जाए किंतु तार क्वांटिटी द वॉल्यूम जहा कहंता हमें सेटा सब बेले कांस्टेंट रहइबो किंतु गैस जदि आसीबा बाष्प जोटा हम कहो तो गैस जदि आसीबा गैस कोन ना तार वॉल्यूम अछि ना तार शेप अछि माने कर तमे गोटे लिटर टी वॉल्यूम नबो गैस नबो हला ऑक्सीजन गैस तमे सिलिंडर रखेले सिलिंडर जहा जेतिक सिलिंडर रहइबो सेटा सेतिक सिलिंडर एबे देखो माने कर तमे जनरली देखिथिबो तुम चुल्ला गैस टा तार वेट होची 14.5 केजी हेले तमे रसोई कला बेले को से तुम गैस कंज्यूम करछो सरी जाउची सेटा 14 केजी रो कमी कमी जाउची हेले भी सेटा पूरा स्पेस टा जो 14.5 स्पेस जो अछि वॉल्यूम टा अछि सिलिंडर रो सेटा पूरा ऑक्युपाई करथिबो तो गैस रो केबे हेले भी शेप और वॉल्यूम न थाए किंतु जेथिरे रखिबा तार से शेप आसी जाए और सेति वॉल्यूम हाई जाए तो से तीनटा होची मैटर रो एग्जिस्टेंस एबे बुझा पड़ला समस्त को हां सर हला हां सर हां ठीक अछि हेले एबे देखिया कोन हमको ए सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस भितरे इंपोर्टेंट होची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पई सॉलिड्स आर इंपोर्टेंट हला हेले हम कोन करबा एबे सॉलिड रो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही देखिबा हेले सॉलिड्स हमको को वे रे और हमको मिल थाए हेले दुईटा टाइप रो मिले एक्चुअली गोटे होची क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोली कहंती आ गोटे को एमोफस स्ट्रक्चर बोली कहंती हला तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर माने कोन हेले एबे देखो सब पदार्थ जग कोन एटम रे तयारी हेची हला हेले एटम जाक जदि तमे गोटे पर्टिकुलर पैटर्न करिवो और ताको रिपीटेड करिवो तीनटा डायरेक्शन रे एक्स वाई और जेड माने 3 डायमेंशनल स्पेस रे जदि तमे गोटे टाइप रे पैटर्न करिवो ताको हमें कहूजो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हला एबे देखो तुम डायमंड देखिवो तुम एक्स रे जहा रहइवो वाई रे ताहा रहइवो जेड रे भी सेया रहइवो हला तुम जदि बड़ चिन्नी दाना और नथले मिश्री जदि देखिवो मिश्री को देखो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तुम एक्स रे जेमिति रहइवो वाई रे जेमिति जेड एक्सिस रे भी सेमिति रहइवो तो ताको कहंती क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हले कोन कोन से देखो एक्चुअली डायमंड सोडियम और NaCl जोटा माने साल्ट जोटा कहउछंती हला सोडियम क्लोराइड साल्ट से जाको एक्चुअली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रे हिसाब रे मिले हमको हला हले क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रो प्रॉपर्टीज कोन एबे से जाकर शार्प मेल्टिंग पॉइंट माने कोन हुए तमे टेम्परेचर बड़े बड़े जीवो गोटा पर्टिकुलर टेम्परेचर रे सेटा सडनली मेल्ट हे जीवो तरल पदार्थ हे जीवो सेकंड प्रॉपर्टी होची एन आइसोट्रोपिक बोली कहंते एन आइसोट्रोपिक माने कोन माने कर तमरो एक्स एक्सिस रे जो हिसाब रे टेम्परेचर बढ़िबो वाई एक्सिस रे से हिसाब रे टेम्परेचर बढ़ी न पारे डिफरेंट टाइप रे बढ़ी पारे काइक माने तुम एक्स एक्सिस रे जो स्ट्रक्चर ता थिवो वाई एक्सिस रे भी गोटे स्ट्रक्चर थिवो कि सेम स्ट्रक्चर रहइबो बोली माने नै हला तो ताको कहउछंती एनाइसोट्रोपिक सो ईच डायरेक्शन हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी माने एक्स डायरेक्शन रे प्रॉपर्टीज अलगा थाए वाई डायरेक्शन रे प्रॉपर्टीज अलगा थाए जेड डायरेक्शन रे प्रॉपर्टीज अलगा थाए सो ए दुईटा प्रॉपर्टीज होची तुमरो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हला सेमिति एमोफस कासिले कोन एमोफस जाका होची रैंडम तार गोटा स्ट्रक्चर किछि न थाए से जाका एक्चुअली रैंडमली स्ट्रक्चर थाए हेले रैंडम स्ट्रक्चर रे कोन तुम पैटर्न किछि न थाए जिगजैग हिसाब रे थाए एक्स रे गोटा टाइप रो थाए वाई रे गोटा टाइप रो जेड रे गोटा टाइप रो कि डिफरेंट टाइप रो थाए हला ताको एमोफस बोली कहंते हला हेले एमोफस जो स्ट्रक्चर अछि तार प्रॉपर्टीज कोन
तार किछि हेले शार्प तार मेल्टिंग पॉइंट न थाए माने तमे हीट टिके बढ़ले एटा स्टार्ट हे जो मेल्टिंग सेटा बड़ी 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 गले टोटल पदार्थटा मेल्ट हबो किंतु गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर ही मेल्ट हबोनी से डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट टेम्परेचर रे मेल्ट हुए हला सेटा होची तमरो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक इन नेचर माने कोन एक्स डायरेक्शन रे जहा प्रॉपर्टी थाए y डायरेक्शन रे सही प्रॉपर्टी थाए z डायरेक्शन रे भी सही प्रॉपर्टी थाए माने प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस माने तीनटा जाका एक्सिस रे प्रॉपर्टीज कांस्टेंट थाए तो सेटा होची तमरो दुईटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स हला हले एठी तुमको क्वेश्चन कोन आसी पारे हले क्वेश्चन एठी आसी पारे तुमको मे बी प्रोबेबल क्वेश्चन व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ solid structures and list their properties हला जदि ए हिसाब रे क्वेश्चन आसला कोन लिखिबो तमे लिखिबो जे मटेरियल सॉलिड मटेरियल्स दुटा टाइप रो थाए गोटा होची क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ गोटा होची एमोफस स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर माने तारो एटॉमिक स्ट्रक्चर टा गोटा पर्टिकुलर पैटर्न थाए और सही पैटर्न टा रिपीटेड होई थाए इन 3 डायमेंशनल स्पेस रे और तार प्रॉपर्टीज कोन आर प्रॉपर्टीज होची शार्प मेल्टिंग पॉइंट थाए आ गोटा होची एनिसोट्रोपिक माने एक्स वाई जेड डायरेक्शन रे प्रॉपर्टीज अलगा अलगा थाए सेकंड आसी की एमोफस जथरे की atoms are arranged in a random fashion or a zigzag fashion तार प्रॉपर्टी होची आर पिछे हेले शार्प मेल्टिंग पॉइंट न थाए आर प्रॉपर्टीज जाक कांस्टेंट थाए एक्स वाई जेड डायरेक्शन रे हला सो एटा होची मटेरियल रो प्रॉपर्टीज एबे कोन करिवा नेक्स्ट आसी की हमें टिके सॉलिड्स विषय रे बेसिकली एटम्स विषय रे जानिबा हला एटम्स विषय रे जानला परे तार बॉन्डिंग विषय रे जानिबा हला सो एटम माने कोन एक्चुअली कोटे टाइनी पार्टिकल ऑफ द मैटर सो एटम रे कोन कोन थाए हमको न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हला हला इलेक्ट्रॉन जा कोन इलेक्ट्रॉन जा होची नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन कोन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होची जीरो चार्ज हला हले किंतु एटम एज ए होल कोन न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माने आर मीनिंग होची नेट चार्ज होची जीरो आर मीनिंग कोन हले आर मीनिंग होची मन कर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेले ही तुम कोन एटा पॉजिटिव चार्ज हला एटा नेगेटिव चार्ज हला दुटा जाक मिसिले तुमरे कोन हले जीरो हे गेला तो जीरो को हम कहउछु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोली हला हले एबे देखो कोन करिया मन कर गोटे पर्टिकुलर एटम ते नबा सो फॉर एग्जांपल आमे नबा एटा होची सोडियम सोडियम रो एटॉमिक नंबर केते अच्छी एटा होची 11 आई थिंक हला हले एटा एक्चुअली एटा कोन एटा न्यूट्रल किंतु माने आर पॉजिटिव चार्ज होचे 11 नेगेटिव चार्ज होचे 11 दुटा जाक मिसेले 0 एबे
हमको कौन दरकार ए इलेक्ट्रॉन जाको 11टा इलेक्ट्रॉन को फैशन रे हमको अरेंज हेछि हला तो हमको सेंटर रे +11 अछि हला पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रॉन भी अछि हमर फर्स्ट सेलटा होछ हमर कोन फर्स्ट सेलटा होछ हमर 1s सेलटा 1s सेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन रहे दुईटा सेकंड सेल राशि की 2s 2s रे केतरा रहे दुईटा नेक्स्ट राशि की हमारा राशि की 2p 2p रे केतरा रहे 8टा माने 2s रे दुईटा 2p रे 6टा तो केतरा हला एटा 6 2 8 नेक्स्ट राशि का हमारा 3s 3s राशि का हमारा केतरा रहला आसी के रहला गोटे तो टोटल 11टा हला 2 2 4 6 10 1 11 हला हले हमरा आसिला 1s2 2s2 2p6 एटा रहला 8 देन 3s1 3s1 टोटल हला हमरा 11टा हला हले एबे ए जो इलेक्ट्रॉन जाक अछि ए इलेक्ट्रॉन जाक हमर होछि चार्ज कैरियर्स हला एक्चुअली 3s रे केतरा रहबा दरकार 3s रे एक्चुअली हमर दुईटा इलेक्ट्रॉन रहबा दरकार किंतु हमर रहिछि गोटे माने एटा कोन एटा होछि अनस्टेबल स्ट्रक्चर कोटा 3s होछ हमरा अनस्टेबल हला हले एबे आपको हमें कोन करबा स्टेबल करियर अछि आपको स्टेबल करियर अछि माने कोन करियर अछि जेहेतु s रे हमरो मैक्सिमम दुईटा इलेक्ट्रॉन रहे सो एट गोटे फांका अछि एट गोटे इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करबा ऐड कले 3s रे कोन हला दुईटा हे गेला तो दुईटा हे गेले कोन s टा पूरा कंप्लीट हे गेला सेटा गोटे मेथड और एल्स जो इलेक्ट्रॉन अछि आपका हमें बाहर को नहीं जीवा बाहर के नहीं गेले भी कोन अप टू 2p पर्यंत हमरो फुल्ली ऑक्युपाइड ये सेल हैला तो सेटा भी स्टेबल है परिबो हेले ए जो प्रोसेस टा अछि इधर ऐड करिकी बा बाहर करिकी ताको हम एक्चुअली कहू जे बॉन्डिंग बोली के तो बॉन्डिंग कला हम कोन इलेक्ट्रॉन को ऐड करि परिबा इधर बाहर करि परिबा नथले शेयरिंग करि परिबा ताको धरि के हमरो गोटे एटम रो स्टेबल स्ट्रक्चर आसे हला तो स्टेबल केमिते आसे atom structure will be stable if its outermost cell has fully occupied electrons हला तो ये जो फुल्ली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स हमें केतरा वे रे करि परिबा तो आपको हमें कहबा एक्चुअली बॉन्डिंग और बाइंडिंग हला हले ये जो बाइंडिंग माने कोन सो बाइंडिंग माने कोन एक्चुअली atoms and molecules in a solid are held together by electrostatic force of attraction between
negative and positive charge of a nuclei हला आपको कौन करवा आपको बाइंडिंग माने atoms and molecules in a solid are held together by electrostatic force of attraction को कहबो बाइंडिंग बोल के हला atoms and molecules in a solid are so दुईटा जाको हम गोटे attraction electrostatic force of attraction सहित बांधिबा ताको हम कहबो बाइंडिंग बोले हला केमिति बांधिबा एबे देखो एबे हमर जो सेंटर रे कोन अछि प्रोटॉन्स अछि प्रोटॉन कोन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोन नेगेटिव चार्ज हले एबे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोन कहउची ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज attract each other or each opposite charges attract each other electrostatic force कहउची हले जेहेतु हमर प्रोटॉन होची पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होची नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भितरे हमर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो ताको हमें कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दुईटा एक्चुअली ए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को बांधी के रखिबो हला ताको हमें कहबा बाइंडिंग और बॉन्डिंग बोली हला हले एबे एक्चुअली आपको ए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहउचंती कोहेसिव फोर्स भी कहउचंती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें कौन कहउचंती कोहेसिव फोर्स भी कहू हला सो ए जो फोर्स अछि एटा हमर ग्रेविटेशनल फोर्स सहित भी बेसी एटा तो सेति पे से दुटा ऑलवेज जॉइन है कि रहबे हला हले ए जो बाइंडिंग अछि बाइंडिंग रे एक्चुअली हमर चारि प्रकार अछि हला हले एटा कोन बाइंडिंग एनर्जी जो दे हाई मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर हला एटा गोटे नोट हाई बाइंडिंग एनर्जी implies highly stable structure जति की बाइंडिंग एनर्जी हाई होबो तुम स्ट्रक्चर टा सेति की स्ट्रांग रे रहिबो तुम ताको भांगी परिबनी हला ताको कहउचंते हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर एबे डायमंड होउछ बहुत हाईली बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई ताको तुम भांगियार बहुत कष्ट हला सबुठारु ताको कहउचंते हार्डेस्ट एलिमेंट हला हले एबे हम देखबा ए जो बॉन्डिंग अछि केते प्रकार बॉन्डिंग अछि हला टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हले हम कोन एटी देखला सो फर्स्ट टाइप होछि तमरो आयनिक बॉन्ड आयनिक और आयनिक बॉन्डिंग सेकंड आसिकी तमरो कोवेलेंट बॉन्डिंग थर्ड आसिकी तमरो मेटालिक बॉन्डिंग फोर्थ आसिकी तमरो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और आपको भी कहउचंती वंडर वाल्स बॉन्डिंग हला हले एबे देखो आयनिक बॉन्डिंग माने कोन
हेले एबे तुमक देखो एबे आमे Na रे कोन नेला सोडियम Na माने सोडियम सोडियम रो आउटर मोस्ट सेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि आउटर मोस्ट सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि तुम जदि आउ गोटे सोडियम एटम नबो तार केतरा रहइबो आउटर मोस्ट सेल रे गोटे एटम रहइबो हेले इटे कोन देखिबा सपोज Na इटा नबा इटा आउटर मोस्ट सेल जोटा कि 3s टा आ गोटे Na नबा इटा होछ आउटर मोस्ट सेल जोटा कि हमरो 3s टा 3s इटा भी 3s हेले एबे कोन करबा ए Na रु एठी को हमें ट्रांसफर करबा माने एबे कोन हला गोटे Na रे दुटा हला इथिर हमरो टोटली 0 हो गेला इथिरे आउटर मोस्ट सेल आउटर इलेक्ट्रॉन इथिरे 0 इथिरे आउटर इलेक्ट्रॉन हमरो 2 हो गेला हले एटा कोन हला एटा हो गेला जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन एड पळेला एटा कोन हला आरो कोन एक्चुअली थिला पॉजिटिव चार्ज केते थिला +11 नेगेटिव चार्ज केते थिला -11 11 इलेक्ट्रॉन जेहेतु थिला एबे कोन हला पॉजिटिव चार्ज तमरा आसला +11 -10 काई माने गोटे इलेक्ट्रॉन तुम ऑलरेडी बाहर कर नेलो माने 10 टा इलेक्ट्रॉन रहला आउटर सेल रे माने 1s2 2s2 2p6 3s 0 हो गेला सो एटा कोन +1 माने एटा हो गेला तमरा Na+ माने एटा हो गेला आयन सिमिलरली एबे एटा कोन हला जेहेतु तुमरो सेंटर रे केते रहला आ पई +11 रहला माइनस इटा जेहेतु गोटा आसी गला -12 माने टोटल केते -1 माने एटा कोन हला गोटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गेला एटा हो गेला Na माइनस हला एटा नेगेटिवली चार्ज हो गेला एटा पॉजिटिवली चार्ज हो गेला माने एजा के कोन न्यूट्रल सोडियम एटम्स नै एजा का सोडियम आयन्स हो गेला तो से प्रकार बॉन्डिंग कहउचंती आयनिक बॉन्ड्स हला हेले बे आयनिक बॉन्डिंग रे कोन टोटली ट्रांसफर कोन हला आउ थोड़ा टिके बुझे दिनु हां एते पर्यंत ठीक अछि ना टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पर्यंत हाँ सर हां एबे देखो एबे आसीबा आयनिक बॉन्ड रे कोन हबो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन अछि गोटे एटम रो आ गोटे एटम को ट्रांसफर हे जो पूरा हला हेले जोथिरु ट्रांसफर हबो सेटा कोन पॉजिटिव आयन हे जिवो पॉजिटिवली चार्ज काइक माने प्रोटॉन्स बेसी रह जिवो इलेक्ट्रॉन्स कम रह जिवो जेहेतु तुम गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करे नालो जेतेरे तमे इलेक्ट्रॉन दउचो सेतरे कोन हला गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कलो सेतबे से स्टेबल हला हेले जते एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कला परे एटा कोन नेगेटिवली चार्ज हे गेला काइक माने तुमर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेटा Na माइनस हे गेला जेहेतु बेसी इलेक्ट्रॉन्स रहिला तो एटा पॉजिटिव आयन हला एटा आसी के नेगेटिव आयन हे गेला ताको कहउचंती आयनिक बॉन्डिंग हले आयनिक बॉन्ड केमित हबो जेतेबेले गोटे एटम रो आ गोटे एटम को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हबो सेतेबेले आयनिक बॉन्ड हबो तो जो एटम रो ट्रांसफर हबो सेटा पॉजिटिव आयन हे जिवो जो एटम ता रिसीव करिवो सेटा हे जिवो नेगेटिवली चार्जड आयन्स सेति पे ताको कहउचंती आयनिक बॉन्ड एबे बुझी पारलो हले हां हाँ सर सर आर डेफिनेशन होची the bond formed by transfer of one or more electrons from
one atom to other atom is called ionic bond. ହେଲା हेले आर प्रॉपर्टीज कौन आयनिक बॉन्ड रो सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होची एटा स्ट्रांग ए बॉन्ड होची स्ट्रांग बॉन्डिंग माने एटा कौन मटेरियल टा जनरली हार्ड and highly dense second property आसिकी melting point high रहिबो melting point high third property आसिकी so bad conductor of electricity हला सो इ तीनटा प्रॉपर्टी होची तार ये हले जतबेले भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होबो से जक स्ट्रांग बॉन्ड एंड तार मटेरियल एक्चुअली हार्ड रहिबो हाईली डेंस रहिबो और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहिबो कोन पे हाई माने इट्स ए स्टेबल स्ट्रक्चर stable atomic structure are bad conductors of electricity कौन पे bad conductor no free electrons हला सेति पे ए जाको bad conductors now हले second type of bonding कौन covalent bond हले covalent bond कौन actually एथरे sharing of electrons हले एबे देखो जनरली तुम कौन करियो सपोज से सिलिकॉन नबो सिलिकॉन रे चारटा तुमरो थाए हला तुम जदि आ गोटे सिलिकॉन नबो तार भी चारटा आउटर मोस्ट सेल थाए हले एबे कौन करिवो एटा एक्चुअली ए दुईटा को मिसी की गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो एटा को बॉन्ड हले ए जो इलेक्ट्रॉन टा दुईटा इलेक्ट्रॉन दुईटा सहित से मैच शेयरिंग रे हबो हले ए सिलिकॉन कंसीडर कला को ए दुईटा कंसीडर हबो ए सिलिकॉन कंसीडर ए दुईटा कंसीडर हबो तो सेति में ताको कोवेलेंट बॉन्ड बोल को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हले पूरा ट्रांसफर हबनी किंतु दुईटा जाको शेयर करिवे बॉन्डिंग फॉर्मेशन रे ताको कहबा हमें कोवेलेंट बॉन्ड हला हले कोवेलेंट बॉन्ड रे कोन हुए एक्चुअली each atom will share the equal number of electrons so each atom माने करो ए सिलिकॉन टा गोटे देला माने आर सिलिकॉन भी गोटे एटम का दबो जदि एटा दुईटा दबो माने एटा भी दुईटा दबा को बाध्य each atom share or contribute equal number of electrons तो ताको कहउछन तमे जनरली कोवेलेंट बॉन्ड हैला हैला आर प्रॉपर्टीज कोन हैला कोवेलेंट बॉन्ड ता तमारा स्ट्रांग बॉन्ड ना नाही डेफिनेटली इट स्ट्रांग बॉन्ड हैला इट्स ए strong bond
सो इटा जो स्ट्रांग इटा कौन मटेरियल टा हार्ड डेफिनेटली हम सेकंड आर मेल्टिंग पॉइंट केते रहइबो आर भी तमर मेल्टिंग पॉइंट टा हाई रहइबो हाई मेल्टिंग पॉइंट काइक माने आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई हार्ड प्रॉपर्टी कौन देखो आर कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टा चेंज हुए मिनिमम रु मैक्सिमम थाए आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी varies from insulator to conductor stage. It is important. So actually here कौन electrical conductivity is a function of temperature actually it. So electrical conductivity is a function of temperature. Okay, so सेटा होची covalent bond. हेले covalent bond रे कौन कलो आमे दुईटा एटम को आनिलु हेले आनिलारे कौन हला आर आउटर मोस्ट सेल रे जहा इलेक्ट्रॉन थिला इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करिवे दुईटा जाको शेयर कले कौन से जाको स्टेबल स्ट्रक्चर हबो हला तो इटा एक्चुअली देखो एटा दुईटा सो एट आ गोटे एटम एटा कोवेलेंट बॉन्ड एटा गोटे एटम एटा भी कोवेलेंट बॉन्ड तो एटा गोटे आसीबो एटा भी कोवेलेंट बॉन्ड सो एटा चारटा कोवेलेंट बॉन्ड करिवो कला परे तमरो स्टेबल स्ट्रक्चर आसीबो हला हले एतर पूरा ट्रांसफर हबने एतर तमरो आयन किछ फॉर्मेशन हबने हला एज न्यूट्रल को न्यूट्रल ही रहइबो किंतु एटा शेयरिंग हबो एबे कोन हबो जेति के एटम तमरो कोवेलेंट गोटा कोवेलेंट बॉन्ड जेति के एटम तमरो पार्टिसिपेट करिवे सेति की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ताके शेयर करिवे इक्वल नंबर्स हला आर प्रॉपर्टीज आर स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन हबो जेहेतु एटा स्ट्रांग बॉन्ड मटेरियल टा वेरी हार्ड रहिबो सेकंड मेल्टिंग पॉइंट हाई रहिबो काइक माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई थर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम इंसुलेटर लेवल टू द कंडक्टर लेवल केमिति एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जदि बहुत कम रहिबो एटा इंसुलेटर भलिया काम करिवो टेम्परेचर जदि हाई रहिबो एटा कंडक्टर भलिया काम करिवो ना नेक्स्ट आसी कि तमरो मेटालिक बॉन्ड तो मेटालिक बॉन्ड कौन हबो तमर जो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन्स रहिबो से जाको एनर्जी देले फ्री हे जिवो फ्री हे गेले से जाको मूव करिवो से जा कोन आ गोटे एटम को पळै जो हला आ गोटे एटम को पळै गले सेटा हबो तमरो स्टेबल स्ट्रक्चर एटा भी स्टेबल स्ट्रक्चर किंतु जोट्रु तमरो एटम गला सेटा तमरो कोन अगेन आयन हे जिवो हला तो ताको कहउचंती तमरो मटेरियल स्ट्रक्चर हला हले एटा कोन the valence electrons are loosely bounded to the nucleus and these electrons become free to move
from one atom to another ହେଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି metallic bond so our metallic bond ର properties କଣ so high thermal and electrical conductivity high thermal and electric conductivity माने तुम्हारो टेम्परेचर टिके टेम्परेचर देले शीघ्र से प्रोपागेट करि जिवो एंड इलेक्ट्रिकल भी टिके चार्ज देले सेटा इलेक्ट्रिक फ्लो हे जिवो हला एटा सेकंड आसे की so it are capable of so atoms are capable of accepting electrons काइक माने इलेक्ट्रॉन्स जेहेतु फ्रीली मूव करिवे से जाको आउटर मोस्ट सेल को एक्सेप्ट करि नै जबे जते शीघ्र होबो सेते शीघ्र हला थर्ड वन so absorb by photons तो फोटोन को तंका एब्जॉर्ब कर जिवे हला सो ए तीनटा होची तमरो मेटालिक बॉन्ड एंड द फाइनल वन इज तमरो मॉलिक्यूलर बॉन्ड सो मॉलिक्यूलर बॉन्ड माने कोन एबे देखो ए जाको एक्चुअली गैस रे हबो गैस को जाको एक्चुअली तमरो आर्गन और हीलियम जो कि इनर्ट गैस बोले कहते हला जार की आउटर मोस्ट सेल तो ए जक गैस रे कोन हबो आउटर मोस्ट सेल्स आर फुल्ली ऑक्युपाइड हला माने आउटर मोस्ट सेल रे तमरो टोटल जेतिक इलेक्ट्रॉन रहबा कथा सेतिक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अछि किंतु एटा कोन गैस फॉर्म रे अछि हला हले एबे कोन करबा ताको हम गैस को इमिति वे रे ताको प्रेशर दबा सेटा प्रथम कोन हबो गैस रु तमरो लिक्विड हबो लिक्विड रु तमरो सॉलिड हबो हले एबे देखो गैस रे दुटा एटम भितरे डिस्टेंस केते बहुत बेसी हाई लिक्विड रे दुटा एटम भितरे गैप होची मीडियम एंड दुटा सॉलिड रे दुटा एटम भितरे गैप होची लो माने कोन दुटा एटम भितरे डिस्टेंस को तमे कम कम करि जाउचो कम कले दुटा एटम भितरे तम कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन करचो बढ़ाउचो इंक्रीजिंग सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तमरो इंक्रीज हेले सेटा कोन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हबो implies bonding हला तो ताकू कहउछन हमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोली के हला तो जोटा की तमरो एटा केमित हबो एटा तमरो हाई टेम्परेचर रहइबो एटा मीडियम टेम्परेचर एटा होची लो टेम्परेचर रे हले तमे गोटे गैस रो टेम्परेचर को जदी हाई रु लो को जदी तमे कमाइबो डिक्रीज करिवो हला डिक्रीज कले कोन दुटा एटम भीतर डिस्टेंस को तमे कमाइ दउचो दुटा एटम भीतर डिस्टेंस को कमाइ देले तमर कोन होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी जाउची वंस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी जिवो माने तुमको बॉन्डिंग फॉर्मेशन हबो से टाइप रो बॉन्डिंग को कहउचंती मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग बोली के हला आर प्रॉपर्टीज कोन गोटा होची लो मेल्टिंग पॉइंट
सेकंड होची तमरो बेड कंडक्टर बेड सेकंड होची बेड कंडक्टर conductor of electricity, heat and electricity. And third one is soft and insoluble. Will in water. So it चार्टा प्रकार बॉन्डिंग तुमर एक्चुअली थाए हला तो हमें टोटली देखियो माने बे सेकंड ईयर रे एबे कोन फर्स्ट रे देखिले हमर बॉन्डिंग सो बॉन्डिंग कोन कहउचंती एक्चुअली जदी एटम्स आर दुटा एटम भितरे हमर कोन थाए प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन हला न्यूट्रॉन्स आर जीरो चार्ज protons are positively charged electrons are negatively charged हला हेले जति की प्रोटॉन्स थाए सेति की इलेक्ट्रॉन्स थाए टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिसी की जीरो हुए ताको कहउचंती न्यूट्रल हेले गोटा एटम सब बेले न्यूट्रल पोजीशन रे थाए हला एबे कोन करिवा एबे किंतु जेहेतु आउटर मोस्ट सेल रे जति की इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा जदि सेति की इलेक्ट्रॉन्स रहिबनी माने ताको कहबा हमें अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोली की हला ताको स्टेबल स्ट्रक्चर करिया पे हम कोन करिया को पड़िबो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ताको देबार अछि तो केमिति देबा गोटा टोटली ट्रांसफर करिबा नथले शेयरिंग बेसिस रे करिबा और ताको किछि एनर्जी देले से कोन फ्री इलेक्ट्रॉन हबो सेटा जाय कि से आउटर मोस्ट सेल रे पूरा कंप्लीट करिवो हला तो ए तीनटा इलेक्ट्रॉन धरि की फोर्थ टा जोटा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अछि सेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट हला हले फर्स्ट आसी की आयनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्डिंग जोटा की शेयरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन को हमें मूव करिया गोटा एटम रो आ गोटा एटम को नथले इलेक्ट्रॉन को शेयर करिबा आ गोटा एटम सहित और इलेक्ट्रॉन को फ्री करिबा माने हमर आउटर बैंड रो बाहर कर देबा जा द्वारा कि सेटा आ गोटा एटम को मूव करिवो से एटम रो आ गोटा एटम को मूव करिवो ताको कहबे मेटालिक बॉन्डिंग आ गोटा होछि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जोटा कि हमरा टेंपरेचर को डिक्रीज करले दुटा एटम भीतर डिस्टेंस को हमें डिक्रीज करिवो एटम भीतर डिस्टेंस डिक्रीज हले अट्रैक्शन तमरा बढ़िवो जोटा कि बॉन्डिंग हबो हले आयनिक बॉन्डिंग माने कोन गोटा इलेक्ट्रॉन गोटा एटम रो आ गोटा एटम को इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर करबा जो थ्रू ट्रांसफर करिया से हे जीवो हम पॉजिटिव आयन काइक माने सेथरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसी रहि जीवो जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर देले जो को दबा सेथरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसी हे जीवो प्रोटॉन्स कम हे जीवो सेथमे से नेगेटिव चार्ज हे जीवो ताको कहबा हमें आयनिक बॉन्डिंग रे मेटल कोन जनरली स्ट्रांग थाए मेल्टिंग पॉइंट हाई थाए और बैड कंडक्टर ऑफ is a bad conductor of electricity. एबे कोवेलेंट बॉन्ड रे कोन हुए जनरली शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हुए हले जतेटा इलेक्ट्रॉन जतेटा एटम तमर पार्टिसिपेट करिवो सब एटम जको इक्वल नंबर ऑफ एटम को शेयर करिवे हला ता द्वारा कोन गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ताको हमें कहबा कोवेलेंट बॉन्ड बोली बाय शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हला तार प्रॉपर्टी कना एटा भी स्ट्रांग बॉन्ड रहे हाई मेल्टिंग पॉइंट रहे किंतु आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टा टेंपरेचर डिपेंडेंट जदि लो टेंपरेचर रहे माने एटा इन्सुलेटर भलिया काम करिवो हाई टेंपरेचर रहे माने एटा कंडक्टर भलिया काम करिवो जदि इन बिटवीन रहिले तक हमें कहबा सेमी कंडक्टर्स बोली दा विषय में आगे को पढ़िबा हला नेक्स्ट आसीबा मेटालिक बॉन्डिंग रे कोन हुए आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन थाए और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम थाए तो हम कौन करबे से इलेक्ट्रॉन को हमें फ्री कर देबा जोटा कि से मूव करि पारे गोटा एटम रो आ गोटा एटम को जो एटम को जीवो सेटा से कंप्लीट गोटे माने करो सेटा तीन चार एटम मिसी के सेठी गले जोटा कि आउटर मोस्ट सेल रे जति के इलेक्ट्रॉन दरका सेति के इलेक्ट्रॉन हेइ गेला
तो सेटा गोटा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिवो स्टेबल स्ट्रक्चर ताका हम कहया मेटालिक बॉन्डिंग एथरा हाई थर्मल पॉइंट्स रहे इलेक्ट्रिकली हाई कंडक्टर जनरली जाक मेटल जोटा के आयरन सिल्वर से जाक हुए ए टाइप मटेरियल जाक एटम्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन जो से जाक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करियर कैपेसिटी थाए से प्रोटॉन कहले ऑब्जर्व करे नबो हला लास्ट होची तमर मॉलिक्यूलर और वैन डर वाल्स बॉन्डिंग जोटा कि जनरली गैस स्टेट रे थाए मटेरियल जाक जोटा कि आर्गन हीलियम ए जाक हम कोन करबा आउटरमोस्ट सेल जाक फुल्ली ऑक्युपाइड थाए हले एबे कोन करबा टेंपरेचर आमे हाई रहिला बेलको ए जाक गैस फॉर्म रे थाए जोटा कि दुटा एटम भीतर डिस्टेंस वेरी हाई थाए हले ताकू जद आमे टिके प्रेशर दबा और टेंपरेचर कमे दबा कोन हबो दुटा एटम भीतर डिस्टेंस ता कमे जिवो सेटा कोन हबो गैस रु लिक्विड फॉर्म कासियो आउरी डिस्टेंस कमे दबा माने सेटा सॉलिड हे जिवो सो ए दुटा एटम एत पाखो कासिबे जे से दुटा भीतर गोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हबो और से जाक गोटा बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ताका में कहबा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सो ए जाक लो मेल्टिंग पॉइंट थाए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ए जाक जनरली सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल ए जाक पानी रे मिसिबन और ए जाक सॉफ्ट मटेरियल थाए हला तो इत्ति के भीतर हमर क्वेश्चन कोन आसी पारे जनरली define different types of bonding with their characteristics हला तो ए दुटा क्वेश्चन ए क्वेश्चन तमरा आसी पारे अदरवाइज गोटा पर्टिकुलर बॉन्डिंग विषय रे भी पचारि पारे जहाँ भी गोटे विषय रे हला तो ताको धरि कि तमे ए टोटल चारटा बॉन्डिंग और तार प्रॉपर्टीज जाक लिखिबो हला आज रे क्लास एति के रखिबा अथरा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हला थैंक यू सर इट्स ओके थैंक यू आप किसी डाउट अछि के तमरो टू सर काय रे थैंक यू सर डाउट डाउट किछ अछि कि नो सर कि नहीं ना ओके टू सर देवी थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर देवी सर Thank you, sir. धन्यवाद थैंक यू Kahilo. देवी सर एटा स्टोर जोन करते ऑटोमेटिक हे जो के कटिंग लाइन ना कटिंग जे धन्यवाद सर एटा को डाउनलोड करके तांको पठे देला हो हां तांकर ये रे केमिति एटा रोइबो तांग अछन कि लाइन रे अछंते करला क्लास क्लास सर ग्रुप रे छाड़ दियंतु नोट्स टा ग्रुप रे छाड़ दियंतु